जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अभी जिनके पास तो पावर बीआई इंस्टॉल है तो दैट्स गुड. अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये दो वेज हैं. एक तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें. तो इसमें अगर लिखें कि आप डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम, ये आप देख रहे हैं इसका ये डेस्कटॉप वर्जन है ये वाला जो हम करेंगे, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. तो स्टोर से ये फ्री अवेलेबल है तो इससे डाउनलोड किया जा सकता है. मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ. जी ये ऊपर लिंक दिया भी हुआ है. और दूसरा तरीका है कि आप इसको डाउनलोड कर लें डायरेक्ट. जैसे कि इसमें हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था. जी अरकम आप ऑनलाइन हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन हूँ आपके साथ. आवाज आ रही है मेरी? जी अरकम, अरकम ये आपके पास अगर इसका लिंक है पावर बीआई का, जी सर. ये इसको इसको ग्रुप पे पोस्ट करते हैं. जी सर. सर दो लिंक होते हैं, एक होता है लिंक नहीं सॉरी सर, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पावर बीआई का. नहीं नहीं वो मैं मेरे मेरे ना पीएचडी के मेरे स्टूडेंट हैं इधर ना ग्रुप में. सर मैंने सॉरी रिपीट कीजिएगा. मेरे पीएचडी के स्टूडेंट हैं ग्रुप में. जी जी. वो उनको मैंने कहा है कि आपके पास ही अगर है लिंक इसका तो पोस्ट कर दें. मैं देख के भी पोस्ट कर देता हूँ. मैं कर देता हूँ शेयर आपके साथ. सर मैंने कर दिया. जी ठीक है, थैंक यू. जी ये जो जी अबू बकर साहब ने भी सैयद अबू बकर ने भी कर दिए पोस्ट. थैंक यू अबू बकर. और जी ये ना डायरेक्ट इंस्टॉल का लिंक है दोनों की तरफ से, अबू बकर साहब की तरफ से और अरकम की तरफ से भी. ये मैंने भी पोस्ट कर दिया ग्रुप में. ये डायरेक्ट लिंक है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्ट है वो यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे. ओके आप काइंडली इसको इंस्टॉल करें. अगर कोई मुश्किल हो तो बताइएगा. आई एम आल्सो हियर और अरकम माय पीएचडी स्टूडेंट, ही इज आल्सो देयर टू फैसिलिटेट यू. ये एक क्वेश्चन है
حسان صاحب کی طرف سے ہاؤ اباؤٹ کنیکٹیوٹی فرام ڈفرینٹ ڈیٹا بیس. یس, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مائکروسافٹ ہے وہ نہ صرف ہم ایکسل سے لے کے آ سکتے ہیں ڈیٹا یا مائکروسافٹ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے لے کے آ سکتے ہیں, بلکہ ٹینز آف ادر پلیٹ فارمس, ادر ڈیٹا بیسز, وہ بھی اس سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس میں کوئی پلگ ان کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی پے کی ضرورت نہیں ہے, پیڈ کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے اس کا لنک دینا ہے اور وہاں سے اس نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اور ڈسپلے کروا دے گا آپ کو ٹیبلز کی فارم میں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا جب ہم کرتے ہیں لے کے آتے ہیں تو اس کو وہ ٹیبل کی فارم میں ڈسپلے کرواتا ہے. اور اگر ایکسل میں جو ملٹیپل ایکسل کی جو ایک فائل ہے, جو ورک شیٹ ہے ایکسل کی, اس ایک ایکسل کی ورک شیٹ میں اگر ناٹ ورک شیٹ, ایک ایکسل کی اگر ایک فائل ہے, ایکسل کی جو ورک بک ہے جسے ہم ورک بک کہتے ہیں, جو ایکسل کی فائل ہے, اس میں ملٹیپل شیٹس ہوتے ہیں, جس طرح شیٹ 1, شیٹ 2, شیٹ 3. اور اگر ہم نے ان کو ری نیم کیا ہوا ہے, لائک ہم نے ان کو نام دیا ہوا ہے سیلز, پرچیز اور امپلائیز, یہ 3 نام نیچے دیے ہوئے ہیں. تو جب ہم اس فائل کو, اس ورک بک کو امپورٹ کریں گے ایکسل میں, تو وہ 3 ٹیبلز ہمیں شو کرے گا. ایک ٹیبل کا نام ہوگا ایک ٹیبل کا نام ہوگا سیل, پرچیز, دوسرے کا پرچیز, تیسرے کا امپلائیز, ملٹیپل ہوں گے. فائن. تو یہ تو ہے کہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ آئی بلیو کہ باقی جو میرے کولیگز ہیں وہ انسٹال کر رہے ہوں گے. اوکے, تو وہ آپ ڈائریکٹلی اس کو لے سکتے ہیں. اس طرح یہ جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ اوریکل کا ہو, چاہے کوئی آن لائن ایپس بنی ہوئی ہیں, چاہے کچھ بھی ہے, تو وہاں سے ہم ایزیلی بہت سی ڈیٹا بیسز کو امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے اور اٹس فری اپ ٹو سم لمٹ. اٹس فری اپ ٹو سم لمٹ. اپ ٹو سم لمٹ کا مطلب یہ کہ اگر میں اور آپ اگر سیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے لوکل لیول پہ یہ چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں ایپس, تو ہم بنا سکتے ہیں. ہم پوری پاور بی کی رپورٹ بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو پبلش کرنے کے لیے میں اس کا جو آن لائن ورژن ہے, جو سروس ہے, اس کو لینا پڑے گا, اس کا اکاؤنٹ پرچیز کرنا پڑے گا. میں آپ کو تھوڑی دیر بتاتا ہوں کہ یہ فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیٹا لینا ہے تو آپ اوکے ایکسمل فارم میں ڈیٹا ہو, جیسن فارم میں ہو, پی ڈی ایف میں ہو, پارکویسٹ میں ہو, ایکسس ڈیٹا بیس ہو, اوریکل ہو, آئی بی ایم کی DB2 ہو, یا آئی بی ایم کا نیٹیزا ہو, امیزون کی ریڈ شفٹ ہو, امپالا ہو, سیپ بزنس ویئر ہاؤس اپلیکیشن سرور ہو, یا سیپ کا ہانا ڈیٹا بیس ہو, اور ایس بیس ہو, ایزیور ہو, اور ایزیور کے جتنے بھی ڈفرینٹ فلیورز ہیں اور پلیٹ فارمز ہیں وہ ہوں, پاور بی آئی کا یا ڈیٹا مارٹس ہوں, ان کا پریویو بھی دے دیتا ہے یہ, اور شیئر پوائنٹ آن لائن لسٹ اگر اویلیبل ہے کوئی, تو ڈائنامکس 365 بزنس سینٹرل ہو, گٹ ہب میں سے بھی لے لے گا خود ہی, آپ نے لنک دینا ہے. سیلز فورس رپورٹ, یہ ایک بہت بڑا لنکڈ ان سے بھی لے سکتا ہے, اس کی جو سیلز نیویگیٹر ہے, لیکن وہ آپ کو اب یہ ہے کہ آپ جہاں سے اس کو ڈیٹا کو ہم لے گئے ہیں obviously اس کا ایکسس ہمارے پاس ہونا چاہیے. جس طرح اگر لنکڈ ان ہے وہ اپنا ڈیٹا فری نہیں دے گا آپ کو, کہ وہ آپ کو obviously on some cost آپ کو دے گا. مائکروسافٹ ایکسچینج, اسپارک, ہائیو, آر اسکرپٹ میں سے ابھی میں آپ کو اتنے نام لے دیا, میں بولوں گا تو میرا خیال ہے مجھے 10 منٹ لگے نام ہی بولتے. تو یہ بہت لمبی ڈیٹا بیس ہے, میں آپ کو دکھا بھی, ہم جب اس کو شروع کریں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. اگر آپ اس کی لائسنسنگ کاسٹ دیکھیں
تو ادر ٹولس کے لحاظ سے تو آبویسلی اس کی لائسنسنگ کاسٹ زیادہ ہے، تھوڑی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈالرز میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وی ہیو ٹو ٹیک اے کمپیریزن اور ہیلپ لائک جی. ابھی میں نے ایک چیز اور دیکھی اس میں کہ وہ میں نے کہیں پر یہ بتا رہا ہے کہ جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کا پاور بی اے کہ وہ 10 GB تک ڈیٹا کو سپورٹ کر لیتا ہے. پریویسلی 1 GB تھا، ابھی انہوں نے اس کو اپڈیٹ کیا تو یہ 10 GB تک کر لیتے ہیں. اور ان کی جو لائسنسنگ کاسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اسٹینڈ لون کے لیے، کمپنی کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. انسٹال ہو گیا. ابھی میں اس کی کچھ ہم پریکٹس شروع کرنے لگے ہیں، تو وہ کائنڈلی میرے ساتھ رہیے گا. اور انٹریکٹیو سٹائل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے، آپ کے اندر پارٹیسپینٹس کے درمیان میں جو مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے فوراً کر لیتے ہیں. لیکن اینی وے ابھی کیونکہ صرف میں خود پرفارم کروں گا اور کچھ چیزیں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، کچھ اس میں ہمارے کویسچنز بھی ہوں گے، کچھ اس میں آپ کو اسائنمنٹس بھی دوں گا ساتھ ساتھ، چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ. اچھا یہ کر کے دیکھیں اس کو کیسے ہوگا، پھر آگے اس کا سولوشن بھی دکھا دوں گا میں آپ کو. تو کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کو جو میں کر رہا ہوں اس کو توجہ سے دیکھیے گا، اور آپ توجہ سے دیکھ ہی رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو چیزیں آپ کرنے جائیں گے، جو میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس، ان کو بھی آپ کیجیے اور خود کرنے کی کوشش کریں. تو اگر نہ ہو تو ہو بھی جائیں تو اس کا سولوشن میں آپ کو نیکسٹ میں یہ ساری چیزیں میں نے اسی آن لائن جو ہماری یہ سیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سب کی سلائیڈز پریپیئر کی ہوئی ہیں کہ تاکہ اس کو دیکھ کے بھی اس کو کیا جا سکے. اوکے. جی کولیگس، میں ابھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم یہ جو میں نے آپ کو لنک شیئر کیا وہ اس وے سے، یعنی پہلے وے سے ہم اس کے تھرو ایپ سٹور، مائیکروسافٹ ایپ سٹور اس کو کر رہے ہیں انسٹال. اوکے، یہ سیکنڈ وے، اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ. 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے سسٹم، تو اس کے مطابق آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو انسٹال کر لیں. اوکے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاور بی آئی جو ہے اس کے میجرلی جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں یا اس کے جو نوٹ کمپوننٹ، جو اس کے ورژنز ہیں، جو اس کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، یا اس کے جو مختلف پیکج ہیں، وہ 4 طرح کے میجر ہیں. ایک پاور کیوری کے نام سے ہے، ایک ڈیسک ٹاپ کے نام سے، ایک بی آئی سروس کے نام سے ہے، جو ایک ڈیکس کے نام سے. تو اصل میں تو 2 ہی ہیں، بی آئی ڈیسک ٹاپ اور بی آئی سروس. بی اے سروسز کا آن لائن ورژن ہے سارا، اور جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. زیادہ سروسز جو ہیں وہ جو پیڈ سروسز ہیں اور جو زیادہ پبلشنگ کی سروسز ہیں وہ اس میں موجود ہیں مائیکروسافٹ بی اے سروسز میں. اور یہ کیوری سے متعلق ہے کہ اگر ہم اس میں کیوری، ایون اس کے اندر ایک لینگویج یوز ہوتی ہے مائیکروسافٹ کے اندر، اس کو ہم بولتے ہیں جی، مائیکروسافٹ میں ایک لینگویج یوز ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایم لینگویج. تو یہ ایڈوانس یوزرز کے لیے ہوتی ہے. میں نے ETL کی بات کی تھی، ہم نے ایکسٹریکٹ کر چکے اس میں
یہ کچھ ڈسپلیز ہیں چیزوں کے ڈیسک ٹاپ ورژن جو ہم ابھی یوز کرنے جا رہے ہیں. اس میں کیوری ایڈیٹر بھی ہوتا ہے یا کوئری ایڈیٹر بھی ہوتا ہے, رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر. یہ رپورٹ ہم نے دیکھی تھی, اس کو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. پاور بی اے سروس اس کا آن لائن ورژن ہے app.powerbi.com. اس کو پاور بی آن لائن بھی کہتے ہیں, ساس بھی کہتے ہیں اس کو, یعنی سافٹ ویئر ایز اے سروس. یہ ایک سبجیکٹ تھا جو ہم پڑھا تھا اور پڑھایا کرتے تھے, وہ تھا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے نام سے نا. تو کلاؤڈ میں کلاؤڈ کا آپ نے سب نے ورڈ سنا ہوگا, کلاؤڈ ہم انٹرنیٹ کو کہہ دیتے ہیں کلاؤڈ میں. تو کلاؤڈ کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ, اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل سروس ہوتی ہیں, سافٹ ویئر ایز اے سروس, انفراسٹرکچر ایز اے سروس, اور سافٹ ویئر ایز اے سروس, اور پلیٹ فارم ایز اے سروس, انفراسٹرکچر ایز اے سروس, اور ایپلیکیشن ایز اے سروس, وہ سافٹ ویئر سروس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو اس کا ہے پاور بی اے سروس, یہ ایک ساس کی ایگزامپل ہے, سافٹ ویئر ایز اے سروس کی ایگزامپل ہے. تو یہ اسی کا آن لائن ہے. یہ دونوں کا کمپیریزن دیا ہوا ہے, کچھ چیزیں دونوں میں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایک میں ہیں اور دوسرے میں نہیں. ڈیکس کیا چیز ہے؟ یہ ڈیٹا انالیسس ایکسپریشن ہے. جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک تو ہے کہ جو چیزیں ہم صرف ویژولائز کر سکتے ہیں, جو چیزیں ہمارے پاس گرافس کی فارم میں, ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کر کے اس کو کینوس پہ رپورٹ پہ پلیس کر دیا, اور پھر وہاں سے اس کو کنیکٹ کر دیا اپنے ٹیبل کے ساتھ اور ڈسپلے لے لیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز اس کے کائنڈلی ہولڈ آن پلیز. جی سر وہ کلاؤڈ ہی بچا کیا مل رہا, تو پھر بنانے بھی کیا ہے نہیں, کہاں سے مل رہا وہ ہوٹل کسی کو دیا ہے؟ نہیں, اسی ہوٹل پہ نہیں, ادھر ہی جانے کے بعد بتایا. وہ ملت چوک میں آشا مسجد کے سامنے. اگر سر ادھر نہ جائے تو پھر نہیں, ادھر جانا ضروری ہے, وہ دور نہیں ہے. صحیح کیا تو ہے لیکن اس کو کیا کہوں. جی, اس میں ڈیٹا انالیسز ایکسپریشنز ہیں. یہ میں نے جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ایک تو صرف ہمارے پاس گرافس ہیں, اور دوسرے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں کہ ہم تھرو سم فارمولاز اس کو مزید سے مزید تر بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ جو فارمولاز ہیں, یہ تقریباً 200+ فارمولاز اویلیبل ہیں اس میں ڈیکس کے اندر نا. تو ان فارمولاز کو یوز کر کے ہم بہت زیادہ بہتر طور پہ بھی ریزلٹس لے سکتے ہیں, لیکن وہ بہت ایڈوانس یوزرز کے لیے ہیں. اس وقت وہ ہم صرف اس کو جو چیزیں مینشن تھی اسی کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس کو لرن کرنا ہے, سیکھنا ہے, تو یہ میرے نیچے کچھ لنکس دیے ہوئے ہیں, یہ جو ہائی لائٹڈ ہیں بلو میں, یہ بہت اچھی چینلز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اندر بہت اچھا ڈیکس کو ایکسپلین کیا گیا. تو اوکے, ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. کچھ جو میرے کولیگز ہیں وہ کائنڈلی ایک میسیج ڈراپ کر دیں, جن کے پاس یس کا میسیج سینڈ کر دیں یا اوکے کا میسیج سینڈ کر دیں, تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں ان کے پاس پاور بی اے انسٹال ہے. جی, ابھی تک تو 12-13 لوگوں کے ہوئے ہیں. جی, تھینک یو کریمہ, عدنان. جی, وی ہیو 40 پارٹیسپینٹس آلموسٹ, کیونکہ باقی جو 3 ہیں وہ تو ہماری ٹیم ممبرز ہی ہیں. تو 40 میں سے 16-17 کے پاس پاور بھی انسٹال ہے. چلیں انشاءاللہ. جی سید عرفان, تھینک یو. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. تو چلیں ساتھ سے کر دے رہے ہیں. تھینک یو عبداللہ. اور
इसको करते रहे साथ साथ और हो जाएगा. It will not take too much time. बस सिस्टम जरा थोड़ा सा अच्छा हो तो जल्दी हो जाता है. Please share again QS World University ranking file. जी अरकम ये शेयर कर दीजिएगा काइंडली जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग की फाइल है वो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप जी, पे मैं शेयर शेयर की कर थी दूं। आपको. जी कर सर देता आप हूं। कर. जी थैंक यू. ओके ये हमने ना मैंने आपको जो आपसे शेयर किए थे जो वेबसाइट्स उसकी डेटा सेट्स की, तो इसमें से सबसे पहले मैंने आपको शेयर की थी कैगल की. तो कैगल में ये कैगल से मैंने डाउनलोड किया ये डेटा सेट. तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसमें हमने ये देखा कि 2 फाइलें होंगी आपके पास, उनमें से हमने एक फाइल ली है. ओके हम इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि हमने इसको कैसे लेके चलना है. न्यू शेयर. एडवांस. जी अभी आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है. माइक्रोसॉफ्ट पावर BI ओपन है. जी कोई बता दे काइंडली. नजर आ रहा है आपको? सर आ रहा नजर हमें. जी जी सर आ रहा है, बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा है. जी थैंक यू डिस्प्ले हो रहा है. थैंक यू जी. ओके ये जो हमारे पास सामने ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, इसकी इससे पहले एक येलो सी विंडो ओपन हुई होगी. उस येलो विंडो को आप अभी क्रॉस कर दें और जब क्रॉस कर देंगे डायरेक्ट आप इधर आ जाएंगे इस विंडो पे. वहां से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है. मैं आपको इसी सिस्टम से स्टार्ट करवा देता हूँ. ओके इसमें हमने आप ये देख रहे हैं कि गेट डेटा में हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है जो थोड़ी देर पहले हमारे कोलीग ने क्वेश्चन किया था कि किन किन सोर्सेज से हम डेटा के इनपुट ले सकते हैं. तो ये मौजूद है यहाँ पर. ओके यहाँ पर कैटेगरीज हैं फाइल, डेटाबेस, पावर प्लेटफॉर्म्स, एज्योर, ऑनलाइन सर्विस, अदर. मैं ऑल पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक्सेल, टैक्स, ये एक लंबी लिस्ट है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट यहाँ से लंबी लिस्ट है. इन तमाम से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है, डेटा को गेट किया जा सकता है. डेटा को द मोस्ट
ओके, ये एक लंबी लिस्ट है. हमें क्या करना है अभी, हमने तो सिर्फ एक्सेल की फाइल को लेना है और इससे कनेक्ट करना है. गॉट इट. अब कनेक्शन के लिए हमारे पास जो एक्सेल की फाइल है, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया. एक्सेल की फाइल को ओपन कर दिया. अभी इसको इंपोर्ट कर रहा है, गेट कर रहा है. इसको गेट करने के बाद हमारे पास एक नेविगेटर विंडो ओपन हो गई. ओके, इस विंडो में मैं बहुत स्लो चलूंगा इस पे, ताकि बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं वो साथ इसको परफॉर्म कर पाए. ये स्लाइड्स भी, ये तमाम की तमाम जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये स्लाइड्स में भी मैंने इस तरह ही इनको प्लेस किया हुआ है. स्लाइड्स बनाई हुई है इसकी, तो वहाँ से भी आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी. बाद में आसिफ साहब के थ्रू आपको ये स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी, या मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा यहाँ पर. ओके, ये QS वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग. ओके, ये आसान डेटा है. यानी मैंने आपको बताया था कि जो सिंपलेस्ट मैंने लिया वो डेटा सेट्स, ये वो है, आसानी से समझ आ जाएगा. ओके, ये हमारे पास एक पूरी लिस्ट है. ये इसके कॉलम्स है. अगर यहाँ पर ज्यादा टेबल होते हैं, ज्यादा इस वर्क बुक में, इस एक्सेल की वर्क बुक में ज्यादा शीट्स होती, मतलब 2022 का डेटा, 2021 का डेटा, 2020 का डेटा, 2019 का डेटा, मल्टीपल शीट्स होती, तो ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 4 शीट्स होती, यहाँ पर 4 टेबल की फॉर्म में इसमें डिस्प्ले होना था. और हमने जो अगर सारों टेबल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सारे कर लें, उनको सिलेक्ट कर लें. अभी इस वक्त एक ही टेबल है, उस वर्क बुक में एक ही शीट है, जिस वर्क बुक का नाम QS वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 और आगे एक ही शीट है. तो वो एक ही उसमें शीट है और वो एक ही टेबल के तौर पे उसको ले आया. अब मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊं, अगर यहाँ 2 चीजें आ रही हैं. हमने पढ़ा था, हमने पीछे एक वर्ड देखा था ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो ये अभी मैं ट्रांसफॉर्म पे अगर क्लिक करूं, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के नाम आ रहे हैं. ये किस ईयर की ये रैंकिंग है, ये हमारे पास मुख्तलिफ है. ओके, मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं अगर, तो ट्रांसफॉर्म पे मुझे इस वक्त ये चीजें सामने नजर आ गई. गॉट इट. इस ट्रांसफॉर्म में मैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ. लाइक कुछ डेटा इसमें से डिलीट कर सकता हूँ. डेटा इनपुट तो नहीं, डेटा को रिप्लेस कर सकता हूँ, और कई नए फील्ड्स बना सकता हूँ, नए कॉलम्स बना सकता हूँ इसके अंदर, और कुछ इसमें फार्मूलाज अप्लाई कर सकता हूँ, और इस डेटा के साथ प्ले कर सकता हूँ. तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर इसको ला के इसमें चेंजिंग करें, मैं आपसे बिगिनर लेवल पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर डेटा ला के कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है. जो सोर्स है, जो सोर्स ऐप है, उसी सोर्स ऐप में ही डेटा के साथ जो प्ले करना चाह रहे हैं, जो उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, जो उसमें अपडेट करना चाह रहे हैं, जो मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर ही कीजिए. यहाँ पर लाके करने की जरूरत नहीं है. एक जिसे वो मतलब खाम खा की एक कम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर. एनीवे, यहाँ पर हो जाता है, कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि वो हमारे पास कंट्रोल में चीज़ें होती हैं और हम वहाँ पर ऑलरेडी डेटा की इनपुट ले रहे होते हैं. लाइक मैं आपको छोटा सा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं. सोर्स, ओके, नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर्स, चेंज टाइप्स, को टाइप चेंज की है, ये यहाँ पर की जा सकती है. इसी तरह आप और कुछ कर सकते हैं, लाइक इसके अंदर आपने नए सोर्स में से डाटा लेके आ सकते हैं. ये कीप रोज का है, रिमूव कोई रोज यहाँ से कर सकते हैं, कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, कोई मल्टीपल क्यूरीज है उनको मर्ज कर सकते हैं. ये तमाम का तमाम काम यहाँ पर कर सकते हैं. ओके, वंस यू हैव डन विद इट, इससे आप बाहर आ जाएंगे. लेकिन हमें मैं अगेन रिकमेंड करूँगा आपको कि जो कुछ भी आपने डेटा के साथ
चेंजिंग करनी है, उसको अपडेट मॉडिफाई या इंसर्शन डिलीशन करनी है, तो वो वहाँ पर ही आसान है, और उस सोर्स ऐप में ही आसान है जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया, मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया। ओके, इस वक्त मेरे पास ये अब जो 3 व्यूज देख रहे हैं आप, एक व्यू है इसका रिपोर्ट, और दूसरा डेटा का व्यू है, और तीसरा व्यू इसका मॉडल का व्यू है, उसका लिंक का व्यू है। मॉडल्स ये लिंक शो करेगा। योर स्क्रीन इज फ्रीज, इट्स ओके नाउ, ओके थैंक यू जी। अभी अगेन एक्सेल की वर्कबुक, दिस वन, नाउ आई एम गोइंग टू इंपोर्ट इट। टेबल सेलेक्ट किया और इसको मैंने लोड कर दिया। ये लोडिंग का सारा साइन दे रहा है कि लोड हो रहा है। ओके, ये इस वक्त लोड हो चुका है, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पर क्या लोड हुआ, कहाँ पर लोड हुआ। तो ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा, ये इस वक्त रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है, या हमें टेबल कंप्लीट नजर आ रहा है, इसे डेटा व्यू भी बोलते हैं हम, और लास्ट वन मॉडल व्यू है। लोड ऑप्शन अगर इनएक्टिव है तो हम उसमें, जी देयर आर क्वेश्चंस जी, लोड ऑप्शन इज इनएक्टिव। आप उसको अगर सिलेक्ट करेंगे ना, उसको चेक बॉक्स उसका करेंगे, तो वो एक्टिव हो जाएगा खुद ब खुद। जी अदनान असलम, आपका हो गया। ओके, अभी जब वो डिस्प्ले हो जाएगा टेबल, तो उसमें चेक बॉक्स को अगर आप चेक कर देंगे तो वो ऑप्शन, लोड की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी, तो आप उसको फिर लोड पे क्लिक करके उसको लोड कर सकते हैं। फाइन, ये हमारे पास इस वक्त हो गया। टेबल व्यू इस वक्त ये जो नजर आ रहा है, ये रिपोर्ट टेबल व्यू या डेटा व्यू नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें टेबल को ना, ये टेबल है क्या, ताकि हमें और मैं भी आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी कभी आपने काम करना है तो सबसे पहले ऑब्वियसली डेटा को स्टडी करना ज़रूरी है। जब तक डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, हम इसमें से अपनी जो ज़रूरी मालूमात है वो नहीं ले सकते। ओके, तो सिर्फ एक ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर है, ईयर है, रैंकिंग है कि क्या क्या इसकी रैंकिंग आई हुई है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो सेम रैंकिंग में है अपने पॉइंट्स की वजह से, स्कोर की वजह से। जिस तरह ये देखें, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दोनों तीसरे नंबर पे हैं। इसी तरह ये येले यूनिवर्सिटी जो साउथ कोरिया की है, और EPFL ये भी यूनिवर्सिटी है, 14वें नंबर पे है, दोनों 14वें। एनीवे, लिंक इसका कंट्री किस सिटी की है, रीजन क्या है, लोगो क्या है, फाइन। तो ये हम इसका डाटा को हमने एक दफा स्टडी कर लिया, ये सिर्फ एक ही टेबल है। अब हम आ जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में, जो कि मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो चीजें डिस्कस की थी उनमें से वो मिस हो रही थी। ये अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ। ओके,
یہ یہاں پر یہ جو ویژولائزیشن کا پین ہے اس میں مختلف چارٹس کی آپشن اویلیبل ہے. اسٹیک بار چارٹ اور یہ کالم چارٹ ہے, یہ اس کا کلسٹرڈ بار چارٹ ہے, یہ مختلف چارٹس ہیں. یہاں پر ہم ان میں سے لیٹ سپوز ایک چارٹ سلیکٹ کرتے ہیں, دس ون. اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جس طرح کی لوکیشن, جتنی آپ کو اس کی سپیس چاہیے یا جتنا کا بہتر ویو ہو سکتا ہے, یا اس کو اس ایرو پہ کلک کر کے فوکس موڈ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں سے بیک ٹو رپورٹ آ جائیں. یہ صرف ایک ہمیں پکچر شو ہو رہی ہے, ایک ایریا شو ہو رہا ہے کہ یہاں پر ڈسپلے ہوگا. اب یہ فیلڈز والا جو پین ہے, یہ دو پین دیکھ رہے ہیں, ویژولائزیشن پین اور فیلڈز پین. فیلڈز پین میں یہ ٹیبل شو ہو گیا. اب ٹیبل میں کون کون سے فیلڈز ہیں, اس ایکسٹینڈڈ ایرو پہ کلک کریں گے, ڈاؤن ایرو بن جائے گا, تو یہ یہاں پر سارے فیلڈ شو ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو ٹیبل ابھی اسٹڈی کیا ہے اس میں کچھ یونیورسٹی کا نام تھا, سٹی, کنٹری, یہ مختلف چیزیں تھیں. تو یہ تمام کے تمام فیلڈ یہاں پر شو ہو گئے. ایک چیز اور اہم جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ سمیشن کا سائن ہے, یہ کیا بتا رہا ہے. سمیشن کا سائن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ویلیو ہے اس میں نمیرک ویلیو ہے, اور اس ویریبل کے اندر یعنی رینک ڈسپلے کے ویریبل کے اندر بائی ڈیفالٹ مائکروسافٹ پاور بی آئی نے اس کو سم کر کے بھی ویلیو اپنے اسٹور کر لی ہوئی ہے. ہم اس کو اکٹھا بھی ڈسپلے کروا سکتے ہیں اور سمیشن کی فارم میں انڈیویجلی بھی ڈسپلے کروا سکتے ہیں اور سمیشن کی فارم میں ڈسپلے کروا سکتے ہیں. اگر ہم سمیشن کو جائے کچھ اور لینا چاہیں آپ یا مینز یہ کرنا چاہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں. یہ اس نے بائی ڈیفالٹ سمیشن اس کی کر دی ہوئی ہے. تو یہ جو ملٹی آپشنز ہیں یہ مطلب ابٹ ایڈوانس لیول ہے, لیکن تھوڑا سا اوور میں آپ کو دیتا ہوں. یہ نیو میئر, نیو کالم, نیو کوئک میئر, وہ ہم نے بات کی تھی میئرس کی یا فارمولاز کی بات کی تھی. تو میئر کے اندر ہم فارمولاز اپلائی کرتے ہیں, تو اس کے میئرس کی ایک نئی ہم اس میں فیلڈ بھی لے سکتے ہیں میئر کے تھرو, یعنی فارمولاز کے تھرو. وہ ڈیکس کے فنکشن یہاں ہم یوز کریں گے. اوکے, یہ ڈسپلے ہو گیا, گاٹ اٹ. اب میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم اسی سلائڈ کے مطابق چلتے ہیں تاکہ آپ اس کو جب اسٹڈی کریں اس سلائڈ کو سوئچ کرنا پڑے گا ہمیں. اوکے, جی یہ رینک ڈسپلے کو لے لیتے ہیں ہم. فائن, رینک ڈسپلے کو ہم نے کیا فلٹر آن دس پیج. گاٹ اٹ. یہ کیا ہے, یہ نیکسٹ پین ہے جس کے اندر ہم نے اس کو ڈریگ کیا, رینک ڈسپلے, اس کو ہم نے ڈریگ ڈراپ کیا اس پین میں کہ فلٹر آن دس پیج, کہ یہاں جو بھی ڈیٹا ڈسپلے ہو اس کو ہم نے فلٹر کروانا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہماری انٹینشن یہ کہ ہم ٹاپ جو 100 یونیورسٹیز ہیں جتنا بھی ڈیٹا ہمارا گیٹ ہوا, لوڈ ہوا, اس میں سے جو ہماری ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں صرف ان کا رینک ڈسپلے کریں. گاٹ اٹ. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, فلٹر لگا دیا. کیا کیا, یہاں ڈراپ کر دیا اور از لیس دین, فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے اپنا فلٹر اپلائی کریں گے. میں لکھ دیتا ہوں ادھر لیس دین 100 اور اپلائی فلٹر. What happened to it? جی ہم نے فلٹر اپلائی کر دیا. اوکے, اور ہم نے اس فلٹر پہ کہہ دیا کہ یہاں پر ہمیں لیس دین
100 यूनिवर्सिटीज को, या फॉर एग्जांपल फाइन। अभी अब इसको दोबारा रैंक डिस्प्ले को हमने फिल्टर लगा दिया, अब डिस्प्ले करना है, टॉप 100 को डिस्प्ले करेंगे। अब यही जो रैंक डिस्प्ले हमारा है, इसको आप ड्रैग ड्रॉप कर देंगे इसी के ऊपर। अभी हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो वो यूनिवर्सिटीज रैंक डिस्प्ले जिनका लेस देन और इक्वल टू 100 है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। फाइन। अभी अब दोबारा अगर उसी पे जाएं, टेबल पे जाके देखें कि हमें यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, क्या शो हो रहा है। ये इस डेटा में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। गॉट इट। और इसी के अगर हम जाएं यहाँ पर, तो ये बता रहा है हमें, और अगर इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है इसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये इसका हम डेटा इनपुट लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज। तो इसी को अगर डेटा लेबल्स इसको ऑन कर दें, ये इसका डेटा लेबल भी डिस्प्ले हो जाएगा। गॉट इट। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें इसको, तो नेक्स्ट हमारी इसमें छोटी सी एक असाइनमेंट, जी इसको मैं भी डिलीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट अभी हम प्लेस करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ कि कंट्री वाइज मुझे डिस्प्ले किया जाए या रीजन वाइज यूनिवर्सिटीज को। ये बार चार्ट यहां मैंने कर दिया, ओके। रीजन वाइज डेटा क्या शो करे कि रीजन वाइज हमें यूनिवर्सिटीज को शो करे कि किस रीजन में। पहले हम टेबल पे चले जाते हैं, तो यहाँ रीजन में क्या शो कर रहा है। ये तमाम रीजन्स हैं, हमारे पास 5 रीजन्स हैं, ओके। इनमें से शो करे कि लेट्स सपोज उनका स्कोर शो कर दे। अब इस स्कोर में उसने सम दे दिया या, ओके गॉट इट। ये मैं क्या बता रहा है कि यूरोप में, इसको काउंट कर दें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमें स्कोर की उसकी जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये क्या डिस्प्ले कर रहा है कि यूरोप में 83 यूनिवर्सिटीज हैं, ये टॉप 200 में से। नॉर्थ अमेरिका में 53 यूनिवर्सिटीज हैं, एशिया में 44 यूनिवर्सिटीज हैं, ओशियाना में 15 यूनिवर्सिटीज हैं, और लैटिन अमेरिका में 6 यूनिवर्सिटीज हैं। गॉट इट। एक ये डिस्प्ले हो गया हमारे पास। अब इसी को डिस्प्ले को हम अगर पाई में शो करना चाहें, पाई चार्ट में, इसी को मैंने पाई में शो कर दिया, सिलेक्ट किया उसी टेबल को ही, और यहाँ पर दूसरा चार्ट सिलेक्ट कर दिया, तो ये पाई के साथ डिस्प्ले कर दिया इसमें। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, वही चीज जो हमें बार चार्ट में शो हो रही थी, वही चीज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, लेकिन एक डिफरेंट वे के अंदर। ये क्या बता रहा है हमें कि 83, ओके, 7% भी दे रहा है हमें। लैटिन अमेरिका, ओशियाना, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। गॉट इट। और इसी को अगर हम किसी और फॉर्म में शो करना चाहें, ओके, एक और चीज देख लेते हैं। इसको हम रखते हैं इसी तरह ही। जी अगर कोई चीज पूछनी हो तो मैसेज भी काइंडली कर सकते हैं, या अगर मैं ज्यादा स्पीड में हूं तो
ज़्यादा स्पीडली हम चीज़ें कवर कर रहे हैं तो काइंडली मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा। ओके, ये अभी क्या बता रहा है चार्ट हमें? ये हमें बता रहा है कि काउंट ऑफ स्कोर और रीजन। गॉट इट? लेट्स सपोज हम एक और काम करते हैं, इसमें देखना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ फिल्टर लगा देते हैं कि उनका स्कोर filter on this page. जी, हमारा ये हमारे पास मुख्तलिफ स्कोर्स हैं। हम ये देखेंगे कि सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज को हमें डिस्प्ले करवाए जिन यूनिवर्सिटीज का स्कोर एक खास लिमिट से ज्यादा है। तो वो अभी अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपल, इज ग्रेटर देन 70, फिल्टर को अप्लाई कर दें। अब ये सिर्फ यूरोप की 83 जो काउंट ऑफ स्कोर, यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्कोर सिर्फ 70 से ज्यादा है। और अगर हम करते हैं 50 से ज्यादा तो नॉर्थ अमेरिका की 53 यूनिवर्सिटीज और यूरोप की 83 यूनिवर्सिटीज। और अगर हम इसका कर देते हैं 40 से ज्यादा स्कोर तो ये बता देगा कि जो यूरोप है इसकी 83, फाइन 53 और 44। गॉट इट? ओके, इसमें हम अभी वो भी अप्लाई करते हैं जो मैंने आपसे बात की थी कार्ड्स की या फिल्टर्स की बात की थी। ये मल्टी रो कार्ड और ये हमारे पास सिंपल एक कार्ड है, तो उसमें चेंज कर दिया उसको। ओके, ये हमारे पास एक कार्ड है। यहाँ पर क्या शो करेगा? हम कार्ड पे शो करवाना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कंट्री को शो करवाना चाह रहे हैं, इसलिए फर्स्ट कंट्री यहां पर दे दिया। या हम ओके एक और कार्ड हम अगर यहां पर प्लेस करें उसमें हम शो करवाना चाह रहे हैं, इसको हम आगे चेंज भी कर सकते हैं इसको डेटा को ना। फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लें आप या समराइज के फॉर्म में ले आए। ओके, यहाँ अगर किसी का क्योंकि यहाँ पर ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है ये किसी सम की फॉर्म में तो है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते। स्कोर में अगर हम करेंगे तो ये तमाम के तमाम स्कोर को सम कर देगा। लाइक अगर जो हमारे पास ये टेबल है, ये स्कोर है 100, दिस वन, ये सारा जो स्कोर यहाँ पर आ रहा है, इस सब स्कोर को अगर ये सम कर देगा तो उसकी वैल्यू ये यहाँ पर उसने डिस्प्ले कर दी है कि 12.84,000 ये टोटल स्कोर बन गया। इसको सबको जमा कर दें अगर हम तो। गॉट इट? अभी सिर्फ मैं बेसिक चीजें आप मैंने इसमें शेयर की हैं आपके साथ। अभी जितना हमने इस डेटा सेट पे काम बुनियादी तौर पे कर लिया,
वो भी इतना ही काफ़ी है। अभी हम जो हमारी मेन जो बड़ा डेटा सेट है जो कि क्लोजली रिलेट करेगा, आपके काम से भी रिलेट कर सकता है और सेल से और पूरी वर्ल्ड वाइड उनका जो व्यू है उससे रिलेट कर सकता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो आई थिंक क्योंकि वो डेटा सेट बड़ा है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा बेहतर इसकी प्रैक्टिस की जा सकेगी। एक शुरू कर देते हैं। हाँ जी, तो मेरे तरफ ही आ जाओ, मेरे तरफ ही आ जाओ, इधर ज़रा ज़्यादा आसानी होगी। जी ठीक है। जी ठीक है, कोई बात नहीं। जी ठीक है। जी फिल्टर लगा रही हूँ तब वो शो नहीं कर रहा ग्राफ पर, आई मीन चेंजेस नहीं हो रही उसमें ना। आपने फिल्टर तो अप्लाई कर दिया, लेकिन फिल्टर अप्लाई करने के साथ फिल्टर लगाना किस पे है हमने ये देखना ना। आपने फिल्टर फॉर एग्जांपल अप्लाई कर दिया, तो फिल्टर अप्लाई करने पे हमने उसको दोबारा ड्रॉप करना है उस वैल्यू को, जो वैल्यू हम ग्राफ में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस ग्राफ में जो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे रीजन, फिर सॉरी वाई एक्सिस पे रीजन और एक्स एक्सिस पे इसका स्कोर है। हमने इस पे ये, अगर मैं ये दोनों चीज़ें डिलीट कर दूं तो फिल्टर तो फिर भी लगा हुआ है। क्या फिल्टर लगा हुआ है कि काउंट ऑफ स्कोर 40 से बड़ा हो तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिल्टर लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ स्कोर का और रीजन का, अब ये डिस्प्ले में आ गया, गॉट इट। तो अब ये जो डिस्प्ले आ रहा है इस डिस्प्ले पे ये फिल्टर अप्लाई हो रहा है। जी मोहम्मद फैजान, सॉरी सना, उम्मीद है ये हो गया होगा, ये आपने भी कर लिया होगा। अब यहाँ पर अगर आप कर लें 50 कर लें तो ये अप्लाई फिल्टर भी क्लिक करना है इस पर। अभी तो डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन अप्लाई फिल्टर करेंगे तो वो उसको तो उसके मुताबिक कर देगा। जी फैजान की तरफ से मैसेज है कि हाउ टू लिंक ऑल दिस ग्राफ। जी अभी हम नेक्स्ट जो हमारा है डेटा सेट उस पर जंप करने लगे हैं, इसको हम क्लोज करके। तो वहाँ पर ये तमाम ग्राफ्स, मल्टीपल ग्राफ्स होंगे और स्लाइसर भी वहाँ यूज कर देखेंगे और तमाम ग्राफ्स को लिंक भी करेंगे साथ। ठीक है जी। नहीं एग्जैक्टली। जी फैजान, ओके। अभी हम जो दूसरा डेटा सेट है हमारा, काइंडली उसको जरा लोड कीजिए। ये मैं उसको लोड करने लगा हूँ अभी। एक्सेल की फाइल ही है, कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ। यहाँ पर मैंने उसका वो दे दिया पाथ, और बल्कि वो डेटा सेट नहीं है, डेटा सेट वो बाय डिफॉल्ट इसको उठा लेगा। इसको आप चाहे इसको बंद कर दें और अभी आपने जो काम करना है
मैंने आपको दूसरी एक फाइल शेयर की हुई है, Contoso sales sample for Power BI desktop. आप कहीं इसको डायरेक्ट ओपन कर लें। जी ये कुछ टाइम लेगी, फ्यू सेकंड्स, तो काइंडली इसको ओपन कर लें। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। जी अभी आप उम्मीद है ये एप्लीकेशन देख रहे होंगे। जी डिस्प्ले हो रहा है, एनीवन? ओके जी, थैंक यू शाजुल्ला जी। ये कुछ फाइल्स बनाई हैं, हम इसको इधर परफॉर्म करके भी देख लेंगे, और जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे वो भी हम चेक कर लेते हैं इसमें। ये एक फाइल देखिए सामने जो ओपन है, इसमें इसका डाटा सेट को पहले जरा समझ लें हम। इसमें एक अगर आप डाटा सेट को समझ रहे हैं तो हम मॉडल व्यू में जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 टेबल्स हैं इसमें, जो यहाँ पर जिनके जो लिंक्ड हैं। टेबल तो ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस डाटा सेट में 9 टेबल्स हैं। इन 9 में से जो 6 टेबल्स हैं इनका आपस में रिलेशन है। ओके, और रिलेशनशिप फायदा ये होता है कि अगर हम रिलेशनशिप क्रिएट ना करें तो हमें एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में रिजल्ट्स को व्यू करवाने में मुश्किल होती है। लाइक एक टेबल की अगर दूसरे टेबल से लिंक अप है, तो हम कोई ऐसी वैल्यू लेना चाह रहे हैं कि जो दोनों टेबल से सम होके या कलेक्ट होके या दोनों टेबल से आ रही है वैल्यूज, तो वो इस तरह डिस्प्ले नहीं करेगा अगर बैकएंड पे उसका रिलेशनशिप नहीं है। तो इसलिए हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। ओके, अब रिलेशनशिप क्रिएट करते कैसे हैं इसको जरा देखें। मैं मिसाल, ये एक टेबल है स्टोर के नाम से, ये चैनल का, ये प्रोडक्ट का, ये प्रमोशन का, और ये है सेल्स का टेबल। मैं सेल्स के टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, और ये आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ इस पे एरोज बने हुए हैं। ठीक है, ये वन टू मैनी का रिलेशन है। वन टू मैनी का मतलब है कि इसमें वन है और जो दूसरा टेबल है उसमें उससे मुतल्लिक मैनी वैल्यूज मौजूद हैं। ओके, वन टू मैनी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन पे, इस रिलेशन पे, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। जो जो दोनों कीज, दोनों टेबल में जो कीज हैं आपस में जो लिंक हुई हुई हैं, वो उनके साथ इसको डिस्प्ले कर देगा। मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, चैनल और चैनल की, लेट्स सपोज ये मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो रिमूव फ्रॉम डायग्राम या रिमूव फ्रॉम मॉडल,
आसिफ साहब मुझे काइंडली जी सर, ये अभी देखें तो जी वो ठीक है, जी हो गया, थैंक यू थैंक यू। समझ गया। जी पार्टिसिपेंट्स थैंक यू, वेलकम बैक। पावर ऑफ की वजह से कुछ इशू हो गया था। वी स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम कि हम इसको कवर। जी एम आई ऑडिबल वेल? जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट की तरफ से कि ये फाइल अपलोड नहीं हो रही, इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। ये डेटा सेट फाइल नहीं है, ये पावर बीआई की कंप्लीट फाइल है। इट्स नॉट अ डेटा सेट फाइल, इट्स अ कंप्लीट फाइल ऑफ पावर बीआई। You don't need to get the data, you don't need to click the option of get data, rather आप इसको डायरेक्टली क्लिक करें तो पावर बीआई ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी इंपोर्ट नहीं होगी, इसको आप डायरेक्टली डबल क्लिक करें और ये फाइल ओपन हो जाएगी पावर बीआई की। ओके जी, ये जी शुएब अहमद, इट्स ओके नाउ? ओके, ये मैं बता रहा था कि जो हमें एक रिलेशनशिप नजर आ रहे हैं मल्टीपल टेबल्स के, मल्टीपल टेबल के में रिलेशनशिप नजर आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि ये जो मल्टीपल टेबल्स हैं, 6 टेबल्स, ये आपस में लिंक अप है, इनका वन टू मैनी का रिलेशन है। और इस वन टू मैनी रिलेशन में अगर हम इस पे लिंक पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो हमें एक जो रिलेशन नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल इस पे हम क्लिक करते हैं अगर इसके रिलेशन पे, तो ये आप देख रहे हैं चैनल का जो फील्ड है चैनल का, और सेल्स टेबल में जो चैनल की है ये आपस में कनेक्ट है। तो सेकेंडली प्रोडक्ट से मुतलिक है कि प्रोडक्ट का जो लिंक है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो जो प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की है और सेल्स की टेबल में प्रोडक्ट की है, ये दोनों आपस में लिंक अप हैं। गॉट इट? तो ये जो चीजें आपस में लिंक अप, इसका क्या मतलब है? हमने पढ़ा था पहले, छोटी क्लास में पढ़ा करते थे, एक होती है टेबल में फॉरेन की और एक प्राइमरी की। प्राइमरी की किस लिए होती है कि जो मेन की होती है, और फॉरेन की होती है जो उस मेन टेबल में से उसको जो कि किसी दूसरे टेबल में होती है, और उन दोनों टेबल्स को अगर आपने कनेक्ट करना है तो प्राइमरी की को हम फॉरेन की से कनेक्ट कर देते हैं। वो फॉरेन की वही की होती है
उसके अंदर उसी की डिटेल वैल्यू होती हैं जो कि प्राइमरी की, जो कि पहले वाले टेबल में प्राइमरी की में मौजूद होती हैं। गॉट इट? अगर अब इसमें नेक्स्ट में दोबारा जाएं टेबल्स पे, तो यहाँ में टेबल्स नजर आ रहे हैं। ये कैलेंडर का टेबल है, इसमें ये कीज हैं। ये चैनल का टेबल है, इसमें ये कीज है। ये ज्योग्राफी का टेबल है, इसमें ये इसके फील्ड्स हैं, कॉन्टिनेंट नेम, ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी टाइप, इस तरह प्रोडक्ट, सेल, ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं और उनकी कीज यहाँ मौजूद हैं। गॉट इट? अभी मैं दोबारा रिपोर्ट फॉर्म में जाता हूँ और यहाँ से अगर आप काइंडली देखें तो ये जो दो टेबल, एक यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या हमें बता रहा है, ये हमने कैसे बनाया? आपको यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ये जो मल्टीपल पेजेस हैं, ये सारे पेजेस हम इसी जो हमारे पास मुख्तसर सा टाइम है इसमें कवर कर पाएँ, और हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये जो पेज 1 है, इस पेज 1 में जो डिस्प्ले हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हाईलाइटेड है, ये टिक लगा हुआ है इस पे, ज्योग्राफी का टेबल और सेल्स का टेबल। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में ये दो टेबल यूज हो रहे हैं, ज्योग्राफी का और सेल्स का। मैं ज्योग्राफी के टेबल को अगर एक्सपेंड करता हूँ तो इस टेबल में से हमें जो चीज नजर आ रही है, जो क्लिक है यहाँ पर, जो चेक्ड है, वो रीजन कंट्री नेम है। गॉट इट? और सेल्स के टेबल में दो वैल्यूज, दो फील्ड्स चेक्ड हैं। एक है प्रोजेक्टेड सेल्स 2019 और टोटल सेल्स 2018। फाइन। ये क्या चीज की है कि रीजन नेम को, एक तो ये कि हम खुद सिलेक्ट करें कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा। तो उसके लिए तो हमें कुछ तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, काइंडली इवैल्यूएशन फॉर्म को फिल कर दें और ईमेल कर दें उसको। ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर चैट में आसिफ साहब ने मेंशन किया है जी, थैंक यू। तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड सेल्स 2019 और टोटल सेल्स 2018 यहाँ पर आ रही है कंट्री नेम। फाइन। तो ये यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये प्रोजेक्टेड सेल्स की 2019 में, कि 2019 में जो हमारी सेल्स थी वो कौन कौन सी, किन किन कैटेगरीज में हुई है। गॉट इट? ये मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट है। ये मैं लिस्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये तो इसको तो करके देखेंगे तो समझ आएगी बेहतर। हम ये भी कर भी लेते हैं इसको। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है मल्टी रो कार्ड्स, ये कार्ड्स है, ये तो हमने देख लिया। ओके, इसके साथ अगर आप इसको देखें तो हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन नजर आ रही है, ये वाली स्लाइसर की ऑप्शन। गॉट इट? मैं स्लाइसर पे क्लिक, इस पे दोबारा साइड पे क्लिक करें। अगर किसी भी आप इधर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर जब ये इस पे क्लिक है और उसी दौरान आप यहाँ पर किसी और ग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो मसला दरपेश जो आएगा वो ये होगा कि ये ग्राफ उस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा सारा डेटा डिस्टर्ब हो सकता है डिस्प्ले। तो इसलिए पहले इसको कैनवस पे, इसको ओपन स्पेस पे क्लिक करें, वर्क स्पेस पे। उसके बाद आपने ये स्लाइसर पे क्लिक करना है, ये स्लाइसर आ गया। गॉट इट? अब इस स्लाइसर पे हमने क्या करना है, इस स्लाइसर पे हम कर देते हैं कि चैनल नेम, या हम कर देते हैं मैन्युफैक्चरर। ओके, मैन्युफैक्चरर ही कर देते हैं हम, ये मैन्युफैक्चर कर देंगे। ओके, ये पॉपुलेट हो गया मैन्युफैक्चरर डेटा के साथ। अब ये देखिए जरा, ये जो पहले वाला मैन्युफैक्चरर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस कर दिया तो डिलीट हो गया। अब ये जो डेटा नजर आ रहा है सारा, इस डेटा का ये सारी चीजें लिंक आप हैं आपस में। ये प्रोजेक्टेड सेल्स भी, अब मैंने क्या करने लगा हूं मैं, ये क्या है, ये कार्ड है। इस कार्ड में मैंने क्या डिस्प्ले करवाया है,
इस कार्ड में मैंने डिस्प्ले करवाया है, ये देखिए ना, जब मैंने जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो इस ऑब्जेक्ट में जो जो फील्ड्स इससे रिलेटेड हैं वो फील्ड्स यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ये प्रोजेक्टेड सेल्स 2020, ओके, ये हाईलाइट है। इस तरह मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड सेल 2019, इसको जी पार्टिसिपेंट्स, सॉरी अगेन, पावर ऑफ। मैं इसको भी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा शायद क्वालिटी कोई उतनी अच्छी शायद ना हो। एनीवे, जी मेरी आवाज आ रही है सबको? एनीवन? एम आई वेल ऑडिबल? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी थैंक यू सना, थैंक यू डियर्स। ये हमें अभी इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो ये हमें ईयरली प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है, फाइन। तो अभी जो एक क्वेश्चन था जिसको सारे जिस चीज को मेरा ख्याल है सब इंतजार कर रहे होंगे कि ये आपस में कनेक्ट कैसे, एक दूसरे से कैसे और लिंक अप होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया सारा कुछ। यहाँ पर मैंने चेक करता हूँ ए डाटम कॉर्पोरेशन को, इसको कनेक्ट किया। अभी आप देख रहे हैं कि ए डाटम कॉर्पोरेशन की, मैं दोबारा करता हूँ, देखिएगा जरा सारी वैल्यूज को, इसको मैं चेक करने लगा हूँ। अभी मैं फैब्रिकैम को सिलेक्ट करता हूँ। अब फैब्रिकैम को सिलेक्ट कर किया मैंने, तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले हुआ यहाँ पर। मैं मेरी जरा अल्फाज पे तवज्जो कीजिएगा, इसको, इस डिस्प्ले को सामने रखते हुए मैंने फैब्रिकैम इनकॉर्पोरेशन को सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने पे मुझे क्या चेंजिंग आई कि यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में, उन तमाम कंट्रीज में मेरी टोटल सेल्स, यानी फैब्रिकैम इनकॉर्पोरेशन की टोटल सेल्स कितनी हुई, वो उसके मुताबिक अपडेट हो गया। फैब्रिकैम इनकॉर्पोरेशन की सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक उनके कंप्यूटर्स हैं और दूसरा कैमराज हैं, कैमकोडर्स हैं, ओके। और इनकी फैब्रिकैम इनकॉर्पोरेशन की जो सेल हुई टोटल 2020 में वो इतनी, प्रोजेक्टेड सेल 2019 इतनी, टोटल सेल 2018 इतनी, ईयरली प्रॉफिट इतना। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कोंटोसो को भी सिलेक्ट कर देता हूं। मैंने कोंटोसो को सिलेक्ट किया, ओके, कोंटोसो को सिलेक्ट किया। कोंटोसो का क्या बता रहे हैं हमें कि कोंटोसो के ये प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर भी है, ऑडियो भी है, सेल फोन है, कैमरा कैमकोडर्स हैं और टीवी एंड वीडियोस है। गॉट इट? यहाँ तक उम्मीद है सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि चीज़ें आपस में लिंक अप कैसे हो रही हैं और हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। अगेन मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि ये एक दिन का काम नहीं है, मैं ये 2-3 घंटे में सारी चीज़ें आपको कोशिश तो कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप कन्विंस हो जाएं कि पावर बीआई एक अच्छा टूल है और एक अच्छा विजुअलाइजेशन टूल है और बहुत आसान है, इसके बहुत से
فائدے ہیں، اور یہ آپ اپنے بھی سسٹم پہ بیٹھ کے اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی بہت سی چیزیں اچھی طرح پرفارم کر کے ڈسپلے کر کے اپنے باسز کو، اپنے مینٹورز کو، اپنے جو ٹیم لیڈ کو ڈسپلے کریں گے تو یہ کافی حد تک چیزیں فائدہ مند ہوں گی. اینی وے اگر ہم اس کے پیج نمبر 2 پہ جمپ کرتے ہیں، یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہی چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں. یہ ہم نے سلائسر لگایا ہوا ہے اور یہ ہمارا گراف ہے. پیج 3 پہ جمپ کرتے ہیں. پیج 3 پہ جمپ کرنے پہ میں کیا ملا، یہ جو چیز کیا بنائی ہوئی یہاں پر، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ملٹیپل فیلڈز ہیں، فیلڈز زیادہ سارے. یہ وہی ہے جو ہم نے ملٹیپل پلیس کیے تھے جنہیں ہم کارڈز کا نام دیتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے، یہ ملٹی رو کارڈز ہیں. ملٹی رو کارڈز یعنی ایک ہی کارڈ ہے ملٹی رو. یہاں پر آپ جتنے مرضی پلیس کرتے رہیں ایک ہی کارڈ کے اندر. آپ اس کو موو کریں گے تو سارے اکٹھے موو ہوں گے. وہاں پر ہم جب موو کر رہے تھے تو الگ الگ موو ہو رہے تھے نا، کیونکہ ہم نے سیپریٹ کارڈز لگائے ہوئے تھے. اس طرح اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو ریجن کنٹری، یہ وہی والا گراف ہے جو پہلے والا گراف ہے، اور یہ اس کی سیلز ہے. اس طرح اگر ہم پیج نمبر 4 پہ جمپ کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اور بڑی مزیدار اس کی پریزنٹیشن ہے. اس کو ہم اپنے ملٹی کلسٹر میں بھی شو کر سکتے ہیں، ملٹی بار چارٹ میں. یہ دیکھیں ذرا، سوری، اس کو میں سلیکٹ کروں اگر، تو یہ والا ہے، یہ ٹری میپ ہے، اسے بولتے ہیں ٹری میپ. اگر میں نے اس کو سلیکٹ کر کے اس میں ڈسپلے کرواتا ہوں کلسٹرڈ بار چارٹ میں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یس. اب آپ اس کو دیکھیں تو کتنا یہ کمپلیکس سا لگ رہا ہوگا، کتنا پریشان پیچیدہ لگ رہا ہے. ڈیٹا وہی والا ہے لیکن ہم نے اسی ڈیٹا کو ڈسپلے کروا دیا اس میں، اور یہ بڑا کمپلیکس لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کی. ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑ رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن اسی چیز کو اگر میں ڈسپلے کروا دیتا ہوں ٹری میپ میں، دوبارہ میں نے سلیکٹ کیا اور ٹری میپ کو سلیکٹ کر دیا. اوکے، جیسے میں نے ٹری میپ کو چیک کیا تو یہاں پر یہ چیزیں میں ڈسپلے ہو گئی دسمبر میں. اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے. اس میں چیزیں ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور مائنس بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے، وہ ہم کیسے کریں گے، لیٹ می شو یو. یہ ڈیٹیل اسٹور ٹائپ ویلیوز ٹوٹل سیلز 2018 یہ دے رہا ہے. اس کا ٹوٹل سیل 2018 کتنی آ رہی ہے کیٹالاگس، اور کیٹیگری نیم منتھ نیم. میں اگر منتھ نیم کی جگہ پہ کر دیتا ہوں منتھ کی نیم کی جگہ کوئی ایسی ویلیو رکھیں ہم، اگر یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے منتھ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. ختم اس طرح یہ اسٹور کی یہ سیل ہے. اوکے، یعنی یہ چینلز ہیں. ایک جو کمپنی ہے اس کے پاس 4 چینلز ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے. ایک وہ آن اسٹور کر رہی ہے، ایک آن لائن کر رہی ہے، اور ایک ری سیلرز کے تھرو کر رہی ہے، اور ایک کیٹالاگ کے تھرو کر رہی ہے. تو پریویسلی ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کر لیتے ہیں کہ کانٹیننٹ نیم کے لحاظ سے. اوکے، اب یہ کیا بتا رہا ہے، اس کو دیکھیے کانٹیننٹ نیم کہ نارتھ امریکہ میں جو صرف 3 چینلز کے تھرو سیل ہو رہی ہے، ایک کیٹالاگ کے تھرو، ایک آن لائن کے تھرو، اور ایک ری سیلر کے تھرو. ایشیا میں اسٹور کے تھرو سیل ہو رہی ہے، آن لائن اور ری سیلر. اور یورپ میں
रीसेलर ऑनलाइन स्टोर और इसके थ्रू सेल हो रही है। तो ये इन्होंने सिर्फ इसको शो करवाया। अब हम अगर इसमें कॉन्टिनेंट नेम को खत्म करके इसमें ज्योग्राफिक टाइप डाल देते हैं, वो ज्योग्राफिक टाइप के लिहाज से ले लेगा उसको। और अगर हम, मेरा ख्याल है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गई, कि हम इसमें मल्टीपल जो डेटा है उसको, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो पहले, फिर हर रीजन में जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज वाइज उस रीजन में वो आ जाए कंट्री वाइज, फिर हर कंट्री में सिटी वाइज। ओके, ये 3 लेवल्स में बनाना चाहिए। वो तीनों के तीनों लेवल्स हम इस एक डिस्प्ले में ले सकते हैं। गॉट इट? तीनों के तीनों लेवल्स एक डिस्प्ले में ले सकते हैं। आप तीनों को सिलेक्ट करें कैटेगरी में। ओके, तो उसको वहां पर डिस्प्ले करवाते जाएं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिक टाइप, कॉन्टिनेंट नेम और यहाँ पर सिटी वाइज। तो तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये तीनों को अलग अलग सिलेक्ट कर देगा सारा। या शायद इसकी जगह वो हमने कुछ चीज़ें और सिलेक्ट की हैं, क्योंकि रैंडमली चीज़ें हो गई इसलिए यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। अगर हम एक सीक्वेंस चलेंगे तो बेहतर तौर पर इसको डिस्प्ले कर पाएंगे। एनीवे, तो हम इस तरह करना चाह रहे हैं तो वो इस ग्राफ में सारा कुछ अच्छी तरह शो हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, ये यू विल रियली एंजॉय इट, कि इसके अंदर एक ऑप्शन है क्वेश्चंस की। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने किस तरह से डिस्प्ले करवाना है और मुझे पहले का डिस्प्ले करवाऊँ फिर क्या करवाऊँ, कौन सी ऑप्शन कहाँ रखूँ, तो ये बहुत खूबसूरत एक इसका फीचर है। इसे बोलते हैं क्वेश्चन आंसर फीचर्स। ये आप वर्क स्पेस पे क्लिक करें, क्वेश्चन आंसर पे टिक करें और इसको आप यहाँ पर लें। अभी आप देख रहे हैं कि ये उसने बाय डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन बना दिए। व्हाट इज द नेट सेल, ये बाय डिफॉल्ट बनाया हमारा, इसमें कुछ कोई किरदार नहीं है। ये उसने बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बना दिया। अब हम अगर खुद क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, टोटल सेल्स इन यूरोप। ओके, अब ये हमें इसका शोइंग रिजल्ट्स फॉर, ये इसने रिजल्ट शो कर दिया इसका, आपको नजर आ रहा है जी? ठीक है, ये वाला ना, कुछ स्पेस की वजह से इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम छोटा कर लें, ये वाला। ठीक है जी। और अगर हम इसमें और लिखते हैं टोटल सेल्स इन एशिया रीसेलर, दिस वन, ये उसकी सेल कैलकुलेट करके ले आएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसका। कुछ बाय डिफॉल्ट इसने क्वेश्चन बना दिए, कुछ हमने कर दिए। पेज नंबर 6 पे अगर हम जंप करें तो यहाँ पर भी हम मल्टीपल चीज़ें अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो ये थोड़ा सा बिट कम्प्लेक्स, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं, यहाँ पर आप स्लाइसर लगा सकते हैं और उसका डिस्प्ले दे सकते हैं। ये अगेन वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी। तो ये जो सारा अभी हमने तकरीबन पौने 2 घंटे इस प्रैक्टिकल पे स्पेंड किए हैं, जिनमें से 10 मिनट की वो हमें पावर की वजह से प्रॉब्लम फेस हुआ। तो इन शॉर्ट, पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिस टूल के थ्रू हम चीज़ों को बहुत इजीली विजुलाइज करवा सकते हैं, चीज़ों को बहुत इजीली विजुलाइज करवा सकते हैं और बहुत अच्छे इसके जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास और इजी टू यूज़ है। हमने इसमें ये देखा कि मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स, पाई चार्ट हो, डोनट चार्ट हो, या ट्री मैप हो, या इसका बार चार्ट हो, क्लस्टर्ड बार चार्ट हो, तो वो कैसे किया जा सकता है, वैसे कैसे कराया जा सकता है इसको डिस्प्ले। और हम इसमें किन चीज़ों को, इवन अगर हमारे पास ये मौजूद नहीं है कि ये वे नहीं आ रहा हमें कि हम किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करवाएं या क्या क्या हो सकता है,
तो हम क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अपनी प्लेन इंग्लिश में। वो मैंने आपको बताया था NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो मीन्स के इसके अंदर NLP की भी सहूलत मौजूद है। तो आप NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इंग्लिश में लिखें, पर्टिकुलरली इंग्लिश में लिखें, तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, आपको ऑप्शन देगा या सजेशन देगा जिस तरह गूगल में देते हैं, और उसके रिजल्ट्स भी डिस्प्ले कर देगा। इवन क्वेश्चन आंसर जो फील्ड है उसके थ्रू हम जो क्वेश्चन है वो प्लेस बाय डिफॉल्ट कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा शॉर्ट सा सेशन होगा ये इसको आपने एंजॉय किया होगा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ सारा कुछ किया होगा। इसकी रीज़न ये है कि जो इंटरेक्टिव स्टाइल में चीज़ें अंडरस्टैंड हो पाती हैं, ऑब्वियसली हम ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन इवन दैन ऑनलाइन का फ़ायदा हमें ये है कि मैं इधर फैसलाबाद में बैठा हूँ और आप मालूम नहीं किस किस जगह बैठे हैं, प्रोबेबली कराची में बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मेरे पास थोड़ी बहुत मौजूद थी वो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपसे शो कर दिया, और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में इसको हमने कन्वे कर दिया। एनीवे, तो अभी तो स्कूल्स भी ऑनलाइन, इस्लामाबाद में पहला ऑनलाइन स्कूल भी रजिस्टर हो चुका हुआ है फेडरल बोर्ड के साथ, और ऑनलाइन कॉलेज, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस ब्लेसिंग ऑफ ऑनलाइन। लेकिन अगर ये ब्लेसिंग ही रही तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द NPO, नेशनल प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब और मोहम्मद आसिफ साहब का, कि जिन्होंने ये ब्रिज क्रिएट किया कि मेरे पास जो कुछ नॉलेज था वो आपसे शेयर कर सकूं, और आपके पास जो एक क्यूरियोसिटी थी उसको किसी हद तक सेटिस्फाई किया जा सके। तो एनी क्वेश्चन, वेरी वेलकम योर क्वेश्चन, ईमेल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद होगा, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपकी क्वेरीज को मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड भी करूँगा, और यहाँ वाया NPO, नेशनल प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी लिंक किया जा सकता है। अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू द ऑर्गेनाइजर्स, और